practicals, that is, how to locate 5 element points according to TCM. And before we start, friends, will do just about 3 minutes of meditation, and then I'll hand over the session to today's faculty, Mrs. Shamla Shukla and Nisha Gupta ji. So friends, I request all of you to kindly cross your legs and hold your hand like this, okay? And then sit straight, let your vertebra be straight, relax, close your eyes. You have to just watch your thought. Close your eyes, observe, witness the thoughts. As you witness the thoughts disappear. In other words, flow of thought is mind. Mind disappears. When there is no mind, it cannot take you haywire. Mind cannot take you haywire. You'll come to presence. This is a simple, easiest meditation method wherein you will gain grip over your mind instead of mind having a grip over you. And this meditation will instigate your parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system means which activates coolness, relaxes your mind. All tension, stress, anger, anxiety will go away. You will be able to sleep well, eat well, digest well, relax well when your parasympathetic nervous system is activated. When your sympathetic nervous is activated, it is fight or flight situation. When you face some unexpected dangers, you are coming from a second show movie in the night, nobody is there in the road, suddenly a couple of people with some weapon, they attack you. What happens? You will be under high level of stress, anger, anxiety, tension. You are in, you'll be able to run fast. Palpitation will be there. Blood will supply more blood to capable you to run faster. In other words, you are in fight or flight situation. Wherein, you can't eat, you can't sleep. Your frequency of thought will be in beta level, highest level. You'll be under tension. You can't execute anything, any job. By doing this meditation, your parasympathetic nervous system will be activated. You will be very cool, relaxed. Your perception level will increase like anything. Keep on observing the thought. Don't allow any thoughts to crop up. You become the master of your mind. Slowly, you will also come to know that who is witnessing the mind, thoughts. Who is the seer of thought? Mind is seen. There is a seer in you called witness consciousness. That is your true self. All religions' essence is to know thyself, to know who you are. Meditation will help you to know that there is a witness consciousness in you. That is your true self. Only possess the body and mind, but you are not that. So now gently rub your palms, make a cup out of it and close it on your eyes. And then slowly open your eyes.
Friends, I am extremely happy and proud to welcome a very stalwart in the field of education, that is our faculty today, Mrs. Shamla Shukla ji from Bombay. She is an expert in IELTS, that is, International English Language Testing System, wherein, and she's also an expert in PTE, that is Pearson Test of English, wherein they will teach you how to be an expert in English through listening, reading, writing, and speaking good English, so that when you go to an English-speaking country, you don't find any problem in communicating with the English people. Not only that, it helps you to read any of our Indian English textbooks and understand, pursue properly. More than that, she is, from our own aspects. She is, she has passed her advanced diploma. She is a student of master advanced diploma. She is a health coach, trainer, very good trainer in personality development, and she is a hypnotherapist also. And in overall, in general health, she's a very good consultant, and she also, like a disciple of our Samsthan, operate from a giving domain. Friends, another faculty of today, our course faculty is Mrs. Nisha Gupta ji, who is passed her master one diploma in our Samsthan and capable of teaching. In the days to come, both of them will be an asset to not only our Acupressure Shotra Shikshan Evam Upchar Samsthan, but also for Ishan. They are highly talented. We are blessed to have them amidst us for today's session and in the days to come also. I don't want to take much of your time, students. I'm sure you will all enjoy the session and become an expert in locating the points according to TCM, all the 5 shoe points. Because our body is constituted out of 5 shoe, there is 5 shoe point, that is 5 element point. There is nothing else in the body other than 5 shoe points. If you are an expert on understanding what is 5 shoe points and where is its location, it helps you to treat any disease easily. So I welcome Mrs. Srimati Shamla ji and hand over the session. Welcome, namaste, madam. Thank you, sir. Thank you so much for the warm welcome. I'm deeply honored. Thank you so much, sir. So today's topic is about, am I audible, sir? Okay. Yeah, so today's topic is about 60 command points, that is the 5 shoe points. And in most of the protocols, we use these points. But before starting the session, I would like to invoke the energy of the creator of all that is and take the blessings of all my teachers, my parents, and Khemka sir, JP Agarwal sir, Ravindra sir, and Sai Kumar sir. So today, as I told you, that our topic is about 60 command points and the plotting on the body as well as on the ball. And we have tried to make it very simple because we are just picking up 3 meridians at a time. So I request everyone to take pen, paper, or sketch pen according to your convenience, so that along with us, if you start plotting it, it will be very, very easy. All right. So I hand over the session to Nisha ji now. Nisha ji. Thanks, Shukla ji. And very big thanks to Ravindra sir, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और एंड साई कुमार सर जिन्होंने हमें मोटिवेट किया. मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. एंड हमारे स्वर्गीय पूज्य माता प्रसाद जी खेमका सर जी की ब्लेसिंग्स लेते हुए वर्तमान अध्यक्ष श्री जेपी अग्रवाल सर जी को हाजिर नाजिर जानते हुए उनकी ब्लेसिंग के साथ और अपने गुरुजनों का स्वागत करते हुए उनकी आशीर्वाद लेते हुए आप सभी के साथ मैं ये सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ. हमारा आज का टॉपिक है 60 कमांड पॉइंट एंड 5 शू पॉइंट्स. देखिए 60 कमांड पॉइंट का, कमांड का मतलब ही होता है कि बॉडी पे कमांड, यानी कि हमारी बॉडी पे जो कमांड करते हैं पॉइंट्स, वो उनके ऊपर अब 361 पॉइंट्स हैं हमारी पूरी मेरिडियंस में. तो उनमें से 60 कमांड पॉइंट ही क्यों चुने गए, ये इसका ये क्यों क्वेश्चन है. ठीक है. उसके बाद 5 शू पॉइंट. 5 शू पॉइंट क्यों और कैसे हमारी बॉडी पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे, हमारी हेल्प क्या उनका रोल रहेगा,
किस तरह से उनके साथ हम बड़ी इजीली तरीके से हम डायग्नोज भी कर पाएंगे और उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो हम इसी को क्यों और कैसे को इस उलझन को सुलझाते हुए आज शुरू करते हैं इस बात को। हमारी बॉडी में 12 मेरिडियंस हैं। 12 मेरिडियंस, हर एक मेरिडियन के साथ 5 शू पॉइंट दिए हैं। 12 मेरिडियंस का मतलब है कि बॉडी के रास्ते मेरिडियन उन ऑर्गन तक पहुंचने के हमारी बॉडी में फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट चारों साइड पे 12 मेरिडियंस फ्लो करती हैं। मेरिडियन रास्ते हैं तो उनके ऊपर जो एनर्जी फ्लो करती है हम उनके बारे में जानेंगे आज। और इसी टॉपिक को स्टार्ट करके मैं बहुत इजी एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से हम उन मेरिडियंस को, उन 5 शू पॉइंट को यहाँ पे सेट करके बता सकते हैं कि क्या है वो। एक सिंपल सी एग्जांपल जो लेमैन की भाषा में बताऊंगी। एक रूम में एंट्री करते हैं हम तो उसमें कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल डार्कनेस होती है या सिंपल कोई एनर्जी नहीं होती उसमें। तो हम उसमें स्विच बोर्ड देखते हैं जहाँ पे शू पॉइंट लगे होते हैं, जहाँ स्विच बोर्ड के स्विचेस लगे होते हैं। वहाँ फैन भी है, एसी भी है, हीटर भी है और उनको उसी एनर्जी के हिसाब से हम यूज करते हैं। जब जो हमें एनर्जी चाहिए उसको हम उस स्विच बोर्ड की हेल्प से उसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह से वो 5 शू पॉइंट हमारी बॉडी के स्विच बोर्ड हैं जो हमारे ऑर्गन्स तक, बल्ब जो या ट्यूब जो है वो हमारा ऑर्गन है और वो जो स्विच बोर्ड है वो हमारे यहाँ से भी एनर्जी, यहाँ से भी रास्ता है एंड एल्बो तक। 5 शू पॉइंट हमें टिल एल्बो और टिल नी स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं। इतनी इजी तरीके से नेचर ने हमें ये 5 शू पॉइंट दे दिए कि कहीं से भी आपको ट्रीटमेंट करना है तो बहुत इजी वे में जाके आप उनको, क्योंकि पांचों के पांचों एलिमेंट एक मेरिडियन पे हैं, हर मेरिडियन पे 5-5 एलिमेंट हैं। उन पांचों एलिमेंट्स में से जो भी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब हुई है, बहुत इजीली उनको अपने 5 बोल से भी और बॉडी पे भी, नी और एल्बो तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, हर पेशेंट के लिए भी आप कर सकते हो इजीली। तो वहां से आप उनकी एनर्जी को, डिस्टर्ब एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। बढ़ी हुई है तो कम कर सकते हैं। टोन और सिडेशन उसी पे ही आधार करते हैं, आधारित होती है। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि अगर कोई शू पॉइंट में, सपोज करो फैन में या एसी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप डायरेक्ट मीटर पे नहीं पहुंचते, आप बिल्कुल मेन स्विच ऑफ जो होता है वहां पे कभी नहीं पहुंचा जाता। हम सिर्फ यही सोचेंगे कि ये वाला जो बल्ब खराब हुआ है तो इस स्विच बोर्ड से हम देखें कि कहीं इसमें तो नहीं वायर कोई कनेक्ट ब्रेक हो गई या कोई डिस्कनेक्ट हो गई। तो जैसे हम इसको यही हमारी 5 शू पॉइंट है कि हम सारी बॉडी पे ना पहुंच के उस एक मेरिडियन के जो रिलेटेड मेरिडियन होगी, उस रिलेटेड मेरिडियन के रिलेटेड पॉइंट पे जाके आप प्रेस करके भी पता कर सकते हैं कि एक्सेस है या डेफिशिएंट है। उसको उसी मेरिडियन से ही आप पकड़ सकते हैं और बहुत अच्छे आप एक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। जिससे बिल्कुल आपको किसी के सामने पजल होने की भी जरूरत नहीं पड़ती और फर्स्ट डे ही आप उसको बहुत अच्छे से डायग्नोज कर पाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से उसको समझेंगे इस बात को कि कैसे। अब मेटाफिजिकल तरीके से तो मैंने बता दिया कि स्विच बोर्ड है, रूम है, आपको मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह से आप ले पाए हैं। तो अब मैं आपको फिजिकल वे में बताती हूँ कि फिजिकल वे में आप उस एनर्जी को किस तरह से महसूस कर सकते हैं। सपोज करें आपके यहाँ पे एक पिंपल या कुछ भी अंदर सुपरफिशियल लेवल पे एक दाना सा आपको फील हुआ, लेकिन बहुत इरिटेट नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपको पता है कि यहाँ कुछ है, वो हुई विंड एनर्जी, फर्स्ट स्टेज। आपने उसको इग्नोर किया या नहीं ट्रीट कर पाए या टाइम नहीं मिला, तो उस अगले दिन, उसके अगले दिन या 5-7 घंटे के बाद कुछ भी वहां पे आपको हीट का रूप प्रकट होगा, रेडनेस आ जाएगी उसी एरिया पे। यहाँ पे आपको वो पिंपल पहले सुपरफिशियल लेवल पे फील हो रहा था, जैसे आपको वहां पे रेडनेस होगी तो हीट की एनर्जी है रूप, वहां पे आपको रूप प्रकट हुआ। अब हॉटनेस भी यहाँ पे, क्योंकि अपनी एनर्जी हमने तो बात आज नहीं करनी हॉटनेस की, पर वहां पे हॉटनेस भी आएगी। सेकेंड डे आपको वहां पे उभरा हुआ स्वेल, थोड़ा सा उभरा हुआ सा पार्ट फील होगा, जो वहां पे ऐसा लगेगा कि रेडनेस बढ़ गई है। फिर थर्ड डे आपको वहां ह्यूमिडिटी अपना डोमिनेट करती हुई उस एरिया को फील होगी। वो ह्यूमिडिटी किस रूप में, पस फॉर्मेशन होगी, वहां पे थोड़ा सा बढ़ के जो रेड हो चुका था वहां पे पस का रूप बन जाएगा, वहां पे आपको ह्यूमिडिटी फील होनी शुरू होगी, वहां पे वो पेनफुल एरिया हो जाएगा। अब ड्राइनेस ने तो आना ही है, जब ह्यूमिडिटी आ गई तो ड्राइनेस कैसे पीछे रहेगी, वो तो एनर्जी का स्टेज है, हमारी 4th स्टेज आएगी ही आएगी। वहां पे जैसे ही वो फटेगा 2-1 दिन बाद, 3 दिन बाद, जैसे जैसे ऊपर फॉर्मेशन को टाइम लगेगा तो वो फटेगा, वहां से फिर ड्राइनेस बाहर होगी, स्किन ड्राई हो जाएगी साइडों की,
और वाटर एलिमेंट भी आएगा, तो 3-4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वहां पे वाटर आपको फील होगा कि वो फर्स्ट जो बनी थी वो फट चुकी है, जो एरिया वहां से वाटर आपका हल्का हल्का निकलता है। ये मेरे ख्याल से सभी ने अपनी लाइफ में फील किया होगा इस तरह का कोई प्रॉब्लम। तो ये है फिजिकल तरीके पे हमारी पांचों एनर्जी किस तरह से, छह एनर्जी हमारी किस तरह से अपना रूप दिखाती हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेज पे उनको देख लेते तो फर्स्ट पे क्योर हो सकता था, सेकंड पे देख लें सेकंड पे। मेरे हिसाब से आपको जो भी आपके पास पेशेंट तो अपनी मर्जी से आएगा ना, हमने अपने हिसाब से तो चलना नहीं है, पेशेंट की उस एनर्जी के हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं और देख सकते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं। अब मैं आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए शुक्ला जी से कहता हूँ। All right, thank you. So let me make one thing clear, that we are going to translate the same thing in English. So it is a dual kind of a thing that we have thought over, so that our Hindi students also can benefit and English students also can benefit. So I will just explain what she said, that just like we have a switchboard in the house to control specific devices in the house. So for example, if you want to put on a fan, so we have a specific point for that, specific switch for that. If you want to put on an AC, we have a specific switch for that. Are you getting me? So basically what happens, we have 12 meridians, front, back, and on the sides. So for all the meridians, for each meridian, we have these 5 switches. Now, what are these 5 switches? These 5 switches are the 5 elements on which we can work. And when the 5 elements, when they get imbalanced in the body, this is how the disease develops. All right. So God has given us these 5, shoe points, that they are also called as shoe points. So these are 5 element points. So now what we are going to do is, we are actually going to demonstrate only the plotting today, and we have picked up only 3 meridian today. That is lungs, pericardium, and heart. So that it is easy to be in sequence and it is easy to understand that. So as far as I know, I'm sure I am able to explain it to you, that these 5 shoe points are the 5 element points, and we have total 12 meridians. So in all, we have 60 points, 60 switches. So they are also called as command points. I would call it as 60 switch points. So whenever we need, we can just put on that switch. Whenever we don't need, we can put it off. This is what is called tonification and sedation. So for further explanation and the point location on the body, I would invite Nisha ji again. Very well said, श्यामला जी. Thank you so much. हम अभी शुरू करते हैं. मैं आपको बॉडी पे करती हूँ. लंग्स की एनर्जी को स्टार्ट करते हैं हम. हमें पता है कि उसका लंग्स का एलिमेंट जो है वो वुड एलिमेंट क्या है, Lu11, एंड उसकी एनर्जी है विंड. ठीक है, वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है. तो Lu11 जो है हमारा, देख पा रहे होंगे आप सभी, ये वाला एरिया है. देखिए मैंने डॉट लगाया. Priyanka ji, if you could just pin Nisha ji, so that it is like, the points can be visible. Priyanka ji, I don't know how to do it actually. Lu11, ठीक है. आप बहुत अच्छे से, अगर इनको मैं आपको बहुत इजी वे में कोशिश करती हूँ. बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द नेल. ठीक है, कॉर्नर ऑफ द नेल, ये हमारा Lu11 पॉइंट है. इससे रिलेटेड डिजीज हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि किस किस तरह से इनसे हम कैसे एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं. Lu11, उसके बाद ऐसे चलते आएंगे. ये वाला एरिया यहाँ पे मार्क करना जरूरी है. उसके बाद इस एरिया को मार्क कर लें. देखिए इसके और इसके बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर लाइन, जो स्किन चेंज होती है जिस जगह, उस बॉर्डर लाइन पे सेंटर में हमारा ये Lu10 पॉइंट है. ये देखिए, इसको आप प्रेस करके देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे पेनफुल एरिया होता है. जिनको फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर की कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह की शोल्डर की रोटेशन में दिक्कत है ना कुछ पे, तो ये वाला एरिया उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है. इस पे जरा सा प्रेस करने से उनको बहुत सीवियर पेन मिलेगी. और देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ, बिल्कुल इस एरिया पे 11 एंड 10 यहाँ मार्क करके और यहाँ मार्क करके आप इस एरिया को लोकेट कर सकते हैं बहुत इजीली. Lu10 को, Lu10 फायर एनर्जी है और ये हीट इसकी एनर्जी है, फायर एलिमेंट है.
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पे, जो सोर्स पॉइंट अर्थ पॉइंट भी है LU9। देखिए यहाँ पे आपको एक बोन के बीच में डिप्रेशन, टेंडन के साथ ही डिप्रेशन दिखाई देगा, आप इसको फील करके देखिए, बिल्कुल इसके साथ रिस्ट पे, ये है हमारा LU9। बहुत नीचे नहीं आना, LU11, LU10 एंड LU9। फिर यहां से हम 2 फिंगर इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, 2 फिंगर इसी लाइन में, मैं आपको बताती हूँ, इसी लाइन से नहीं हटना। और आप यहाँ पे सभी अपने अपने बोन को टच करके देखिए, यहाँ से बोन अंदर की तरफ मुड़ती है, अंदर की तरफ टर्न लेगी, और यहाँ पे एक अजीब ये देखिए खड्डा सा है जो हमारा LU8 पॉइंट है, और इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ अगर जाते हैं तो बोन जहाँ पे घूमती है वो हमारा LU7 पॉइंट है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे आपको LU7 आज बताना पड़ा। LU9 के बाद 2 फिंगर LU8 एंड 2.5 फिंगर LU7 है, बिल्कुल साथ पीछे की तरफ। LU8 के बाद हमारा नेक्स्ट है, इसी बोन के साथ हम चलते जाएं तो देखिए ये वाला एरिया आता है, इसको इस तरह से फील करेंगे आप। ये देखिए बिल्कुल साइड पे नहीं है, एक थंब की दूरी है, और यहाँ पे आपको डिप्रेशन मिलेगा, और वहां पे भी पेनफुल होता है। ये LU5 मोस्टली पेनफुल है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। हमारे जितने भी एक्टिव पॉइंट्स हैं सारे ही सेंसिटिव हैं, और जिनको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनको ये कुछ ज्यादा पेन होती है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट की लोकेशन दिखाते हुए, ये देखिए इस तरह से ये पॉइंट है हमारा LU5। अब मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। LU11, LU10, LU9 फायर एंड सोर्स पॉइंट, LU8 मेटल एंड होरेरी पॉइंट इसका, और LU5 ये बिखर गया। ओके, नेक्स्ट मेरिडियन। अब हम आते हैं पेरिकार्डियम पे। हमारी नेक्स्ट मेरिडियन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के लिए हम ये वाला पॉइंट है, ऊपर वाला एरिया हमें थोड़ा सा छोड़ना होता है, उसके बाद जो सामने से विजिबल हो सके पॉइंट, इस तरह से जैसे मैंने हाथ किया हुआ है आपके सामने, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे रहा है। हम इसको लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ये हमें विजिबल होना चाहिए। और जो हमारी ये फिंगर है, इस फिंगर के बिल्कुल साथ हमारी लाइन दिखनी चाहिए हमें लाइन, तभी हमारे ये पॉइंट इस पे पेरिकार्डियम पे आ सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं पता चलेंगे। क्योंकि आगे हमने ब्योल पे जब करना है तो ब्योल से हमें ये लाइनें खींचनी ही पड़ेंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। ये पेरिकार्डियम 9, जब आप इस फिंगर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये बहुत इजी लोकेशन का मेथड है। अगर आप इस फिंगर को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो इस एरिया पे आपकी फिंगर आती है, और ये जो बोन है मेटाकार्पल की जो बोन होती है ये वाली, इनके बिल्कुल साथ डिप्रेशन में ये हमारा पॉइंट आता है पेरिकार्डियम 8। ये देखिए P9 P8। फिर हमें थोड़ा सा ये मेरिडियन घूमती है इस तरह से, सेंटर में आएंगे, और बिल्कुल सेंटर इक्वल डिस्टेंस पे बिल्कुल सेंटर जो आता है ये हमारा P7 पॉइंट। P7 के बाद P5, यहां से आप 4 फिंगर अपनी रखेंगे तो स्मॉल फिंगर यहाँ पे आपकी आती है, ये है हमारा P5। लेकिन इसको 3 फिंगर पे अगर आप रखते हैं तो ये P6 होगा, और 4 फिंगर रखते हैं तो P5 होगा। ये P5 बहुत इजी है लोकेट करना, इस तरह से आपको बड़े आसानी से पता चल रहा होगा। मैं अभी आपके निशान लगा के करती हूँ। ये है P5। इसके बाद हम एल्बो पे पहुंचते हैं। आप जब एल्बो पे पहुंचेंगे तो इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको टेंडन फील होगा। स्मॉल फिंगर एट जॉइनिंग रिंग फिंगर वाली साइड पे आपको टेंडन ऐसे फील होगा। आप अपने अपने बाजू पे फील करके देख सकते हैं। टेंडन के
थोड़ा सा नीचे इस साइड, ये देखिए हाथ मेरा टेंडन के बिल्कुल नीचे, बहुत बिल्कुल साइड साथ ही टेंडन पे, ये हमारा P3 पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया है P3। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको सभी। P9 सामने से देखिए दिख रहा है, P9, P8, P7, P5 एंड P3, पेरिकार्डियम 3। अब आते हैं हम हार्ट मेरिडियन, तीसरी मेरिडियन हमारी। थर्ड मेरिडियन जो है उनका P9 जो स्टार्ट होता है बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द नेल। देखिए बहुत ध्यान से, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? P9 यहाँ और H9 यहाँ पे। इसके बाद आपने यहाँ पे भी फिंगर को फोल्ड करना है। हमारी फिंगर ऑटोमेटिकली P8 पर पहुंच जाती है, H8 पर पहुंच जाती है, H8। ये देखिए यहाँ से आपको बीचों बीच ये वाला एरिया, इस बोन मेटाकार्पल बोन और इस बोन के बिल्कुल बीच में, यहाँ पे हमें अपना H8 पॉइंट मिलता है। H8 पॉइंट का मैं रिजल्ट देख चुकी हूँ। मेरे एक पेशेंट थे, उनके ऊपर हुआ, उनको पता नहीं था कि उनको क्या पेन है, किस तरह की पेन है, तो वो बहुत पसीने पसीने स्वेटिंग हो रही थी, उनको बहुत ज्यादा पल्पिटेशन बैठे बैठे ही हो रही थी। तो उनका ये पॉइंट हमने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया इमीडिएटली, और उनको बहुत सीवियर पेन थी। फिर उनको हॉस्पिटल जाने का 12-13 घंटे मौका मिल गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको हार्ट अटैक हुआ था लेकिन आप बच गए हैं, और उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो ये पॉइंट इतना काम करता है, आपको बड़ी मुश्किल वाली हालात से, बाथरूम में डेथ ना हो जाए उससे बचाया जा सकता है। एकदम से आपको पता चल जाए तो उनका ये पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद H8 के बाद हमारा पॉइंट है H7। H7 कॉर्नर में नहीं जाना बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आपने ये H7 को लोकेट करना है। H7 के साथ 6, 5, 4 एक जैसे पॉइंट है, पर दो फिंगर आप अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो यहाँ पे H8 के सॉरी ये लंग्स 8 के बिल्कुल सामने, इजी लोकेशन के हिसाब से बता रही हूँ कि लंग्स 8 के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको H4 पॉइंट मिलता है। H4 एक ही लाइन में। H4 के बाद हम आते हैं फिर से H3 पे। H3 की लोकेशन देखिए, ये इस तरह से आप फोल्ड जब करते हैं तो यहाँ पे डिप्रेशन है एक, ये वाला डिप्रेशन में आपको काफी पेन फील होती है। हल्की सी भी, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो पेन ही पेन मिलती है। हल्की फुल्की पेन तो हर एक को होगी यहाँ पे। तो ये हमारा H3 है। यहाँ पे देखिए पॉइंट की लोकेशन आप बहुत अच्छे से देख लें कि इसको आप प्रेस करके देखेंगे, जहां आपको गड्ढा फील होगा और इस थोड़ी सी बोन यहाँ पे फील होती है, वो हमारा H3 पॉइंट है। इस तरह से सामने से देखेंगे, देखिए ये है पॉइंट की लोकेशन, ये है आपका सारे, ये है हमारे पॉइंट की लोकेशन LU5, P3 एंड H3। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर किसी पॉइंट की लोकेशन में आपको प्रॉब्लम आई है या नहीं पता चला तो आप शुक्ला जी आपको पीपीटी के थ्रू अभी आपको और क्लैरिफिकेशन देंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप सेशन के लास्ट में हम क्वेरी सेशन रखेंगे, या फिर आप किसी भी तरह से लिख के रख लें, ग्रुप में भी डाल सकते हैं, तो आपकी हर प्रॉब्लम को, हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू शुक्ला जी। So for that, let me share the PPT. Okay, so as we said that we are just going to work on only the plotting today. Nisha ji has showed it on the body. Now we will try and make it clear on the PPT so that it's a double revision and you all can draw it on the page or your hand again, okay? So, see here we have LU11 just at the base of the nail. And this is a wood point, as Nisha ji already said. All right. Now, this is the LU10 right in the center.
okay, and on the borderline. And this is a fire point. As I told you, we are not going to discuss more about the diseases. That we will be having it at the end after finishing all the meridians. Then we will tell you with which combination, what kind of diseases can be cured. All right. So let us come to LU9. So here, as Nisha ji said, that there is a depression over here. Here you will feel a depression, and this is LU9. And this is an earth point. All your queries will be answered at the end. Somebody is messaging. All right. So just on the line of LU9, you will find LU8. So you don't have to miss this line. See this line, the red line, on this line only you have to proceed. And this is a metal point. I hope it is getting clear. And LU5, see, there is this, you can see this red little thing here. So this is a soft, tendon there at the elbow. So just next to that tendon is LU5. See, sometimes what happens whenever we plot a point on the body or beyond. So we have to be very particular, because 1 millimeter difference can make a major difference. And many a times people complain that yes, we applied the protocol and we are not getting the result. So that is the precision of, selecting and locating the point is very, very important. Now let us talk about pericardium. So this is P9. So when you, locate P9, it should be visible when you put your hand straight here, okay? And this is a wood point. This is P8. In a very beautiful way, Nisha ji explained, and you can remember it. You just fold your middle finger, wherever the tip touches, that is P8. And this is a fire point. And on the same line, you have to go proceed on the wrist, there we have P7. Go more ahead, and here we have P5. P9 is confusing, okay. We will describe it again. P5 is a metal point. And this is P3 again on the elbow. So now when we located the last point, it was this side. Now P3 would be little on the right side, okay, touching the bone. And this is a water point. So let us see heart. All right. Now just at the base of the small finger's nail, we have H9, and this is a wood point. Then we have H8. Again, this is very simple. Just fold your little finger, and wherever the tip touches, that is H8, and this is a fire point. Then here again at the wrist, on the wrist at the corner, on the front side, we have H7, and this is a yawn source point. Again, on the same line, you have not to, go away from the line. Just go down on the same line, and there you will find this point, and this is a metal point. And H3, this is a water point, again on the elbow, and it is very easy to locate. All right. So before we proceed, now we are going to, show you the plotting on the Briol. Now see, when we plot the points on the Briol, it's like, sometimes it's so confusing. We just can't know which line to choose, how much millimeter away, or, like the precision, to have a precision is so difficult. So today we have made it little simple. Nisha ji will be showing it on the finger, and we have not taken any other diagram from the internet or something, but then we have actually plotted it properly, drawn it properly, so that it is very, very easy for you to understand. Okay, so over to you, Nisha ji. Thank you, Shyamala ji.
थैंक यू श्याम शुक्ला जी। हम स्टार्ट करते हैं कि ब्योल पे आपको किस तरह से पता चलेगा। ब्योल पे आप इस फिंगर को, ये टू फिंगर्स को ही आप नोटिस करें कि ये हमारी स्विच बोर्ड हैं जो मैंने अभी शुरुआत में बात की थी। यहाँ पे ही हमारी मेरिडियंस ब्योल के हिसाब से प्लॉटिंग होती है। यहाँ पे मैं ये वाली फिंगर को इस तरह इस वाले एरिया में दिखाऊंगी, कुछ करके आपको भी बताती हूँ। ये हमारा हैंड, इसको हैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारी लेग्स की जितनी मेरिडियन जाती हैं वो इस पे प्लॉटेड हैं, और हैंड की यहाँ पे प्लॉटेड हैं। आपको पता है कि LI, SI एंड लंग्स मेरिडियन हमारी हैंड पे ऊपर यहाँ तक ही रहती हैं, इसी एरिया में। तो ये इस फिंगर पे आती हैं, और यहाँ ये लेग्स की है तो ये लेग्स वाले एरिया में आएंगी। इन फिंगर के ऊपर मैं, क्योंकि काफी कुछ यहाँ पे मैंने दिखाना है, तो मैं यहाँ पे वो नहीं एरो बनाने लगी हूँ। तो आप अपने अपने हैंड पे इस वाली फिंगर पे मैं एरो बनाऊंगी। चलो मैं यहीं पे बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सभी अपवर्ड एरो इस तरह से बना लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनवर्ड, उसके बाद यहाँ पे फिर से अपवर्ड, फिर से डाउनवर्ड। टू फिंगर्स, यहाँ अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड। अब हम मेरिडियंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से। देखिए, आपकी हार्ट, लंग्स, हार्ट, पेरिकार्डियम एंड लंग्स यहाँ से जाती हैं, और यहाँ से वो अपवर्ड होती हैं, यहाँ पे आके खत्म हो जाती हैं। यहाँ से फिर नेक्स्ट 3 मेरिडियंस यहाँ से शुरू होती हैं, और यहाँ पे डाउनवर्ड आते हुए यहाँ से जाके वो फेस पे खत्म हो जाती है। ट्रिपल वार्मर, LI एंड SI। और यहाँ से फिर 3 मेरिडियन स्टार्ट होती हैं, UB, GB एंड स्टमक। यहाँ से स्टार्ट होके वो इस तरह से बैक साइड से जाके यहाँ अपवर्ड जाती है, यहाँ पे वो खत्म हो जाती है। अगर आपने इस तरह से बहुत ध्यान से इसको समझा तो आप लाइफ में कभी भी मेरिडियंस के फ्लो को भूलेंगे नहीं, और ये फ्लो आपके हमेशा काम आएगा। आपको फ्लो के बारे में हमेशा पता होना चाहिए कि किस तरह से आप, कौन सा अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है, कौन सा फिर अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है। यहाँ पे हमने वो मेरिडियन, यांग ऑर्गन की जो मेरिडियन थी वो हमने खत्म कर दी, और यहाँ से हमारी लीवर, स्प्लीन एंड किडनी, उनकी एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होता है। तो यहाँ ऊपर से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होके वो इस तरह से जाती हैं, और फिर पूरी बॉडी में हमारे यहाँ चेस्ट एरिया पे आके खत्म हो जाती है। ये है हमारा बॉडी का मेरिडियंस का फ्लो। अगर आपको भी एक बार में मैं और बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। एक सेकंड, देखिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फेस पे आके खत्म, फिर फेस से 3 मेरिडियन, यांग मेरिडियन को हमने उठाया, यहाँ से अपवर्ड, यहाँ पे आके खत्म, और यहाँ से 3 मेरिडियन स्टार्ट, और यहाँ डाउनवर्ड जाते हुए पूरी बॉडी में फ्लो। यांग है एरिया, ये आपको पता है कि इन है हमारा। तो इन मेरिडियन की बात हम कर रहे हैं इस टाइम। आज हम इन मेरिडियन की बात करते हैं। तो हम इस एनर्जी को लंग्स की, हार्ट की एंड पेरिकार्डियम की, इस एनर्जी के फ्लो की बात करेंगे। यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फ्लो के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो आप हम करके बता सकते हैं, या मैसेज करके बता सकते हैं, मैं अगेन बता दूंगी। तो क्लियर है तो ओके, क्लियर। कोई एक मैसेज कर दें फिर मैं आगे बढ़ूँ। It is clear, निशा जी, you can go ahead. ओके, देखिए, अब हम बात करेंगे तीनों मेरिडियन की, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाइन ड्रॉ करने के हिसाब से ही आपको बताना चाहती हूँ, ताकि एक्यूरेट पॉइंट आपको लोकेट हो सके। Nisha ji, people are requesting you have to repeat the flow once again. Oh, okay. हाँ. Okay.
एरो तो अब मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैंने लाइंस बना ली हैं, ऐसे ही बता रही हूँ। हमारी तीनों मेरिडियन जो इन मेरिडियन हैं, जिनकी आज टॉपिक है हमारा, वो बात कर रहे हैं, वो यहाँ से अपवर्ड फ्लो होता है, ऊपर की तरफ जाती हैं। H1, P1 एंड वो यहाँ डोर्सम एरिया से स्टार्ट होती हैं सारी की सारी, LU1, ठीक है। अपवर्ड फ्लो होता है और यहाँ पे आके उनका एंड होता है। नर्व एंडिंग भी होती है यहाँ पे, हमारे पूरे ये जिंगल पॉइंट जो है इनमें नर्व एंडिंग है, तो ये फ्लो हमारा ऊपर, इनका फ्लो यहाँ पे आके खत्म होता है, ऊपर की तरफ जाती है। फिर 3 यांग मेरिडियन जो हैं वो वहां से फ्लो स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाती है। नीचे की तरफ जाके उनका फेस पे, हमारे सभी को पता है कि फेस पे ही उनका एंड है, तो ये हमारा फेस है, ठीक है, एक्यूप्रेशर के हिसाब से। तो यहाँ से वो मेरिडियन फ्लो करते हुए इस साइड इस तरह जाती हैं और फेस पे आके एंड हो जाता है उनका। वो 3 मेरिडियन आपको पता है, आगे चल के बताएंगे, मैं एक बार बता चुकी कि कौन सी हैं तीनों, ठीक है। फेस पे एंड हो जाता है उनका। फेस से हम 3 और यांग मेरिडियन जो उठाते हैं, उनका फ्लो इस तरह से जाते हुए ऐसे अपवर्ड जाके यहाँ पे उनका फ्लो खत्म हो जाता है जिंगल पॉइंट पे। यहाँ से फिर 3 इन मेरिडियंस हमारी स्टार्ट होती हैं, उनका फ्लो डाउनवर्ड जाते हुए 1 पॉइंट से SP1, लीवर 1 एंड किडनी 1 एंड लीवर 1, यहाँ से उनका फ्लो डाउनवर्ड जाके हमारी चेस्ट एरिया पे जाके खत्म हो जाता है। क्लियर? अगर अभी क्लियर नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग सुनना, फिर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हुआ तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, तब भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब हम मेरिडियंस के उन पॉइंट्स पे आते हैं जिनकी आज चर्चा चल रही है, कि उन पॉइंट्स को, एक्यूरेट पॉइंट्स की किस तरह हम लोकेशन करें, लोकेट करें उनको। आपने ये ऊपर वाला एरिया, टिप एरिया जो है वो छोड़ देना है। ये हमारा ब्रेन का एरिया है, हम इस पे ब्रेन को शांत करने के लिए वो टॉपिक अलग से होगा, अलग करते हैं काम। तो यहाँ से हमारी क्लियर, हमारा LU11 पॉइंट स्टार्ट होता है। देखिए ये वाला LU11 पॉइंट स्टार्ट होता है। आपने सेंटर में इस तरह से, ये वाली लाइन सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन इक्वल डिस्टेंस से, ये वात जॉइंट से लेके ऊपर तक के इक्वल डिस्टेंस से हमने ये इस वाले और इस वाले जॉइंट से बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा जो LU10 पॉइंट है ना, वो इस लाइन से स्लाइटली ऊपर आता है, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन के नीचे, और जो मिडल लाइन है ये खींची हुई बीच वाली, इसके थोड़ा सा साथ में, ये LU10 पॉइंट है। देखिए बहुत गौर से देखिए, ये है हमारा वात जॉइंट और ये है हमारा सेंटर ऑफ द फिंगर। वात जॉइंट और सेंटर के बिल्कुल बीच में LU10, ठीक है। अब आ गया LU9। LU9 हमारे वात जॉइंट के ऊपर आएगा, ये वाला। निशा जी एक बार और रिपीट कर दीजिए, और थोड़ा धीरे धीरे। ओके देखिए LU11, ये है हमारा LU11, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इस वाले एरिया से नीचे, ये वाला ब्रेन का एरिया जो मैंने बताया था, इस वाले एरिया के नीचे जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये है हमारा LU11 पॉइंट, ठीक है। अब हम आप सभी मैसी करें अपने हाथों को, आपको पता चलेगा, उससे ही आपको पहचान होगी कि किस तरह से आपने लोकेट एक्चुअल पॉइंट को करना है। अगर आप ग्रुप में डाल सकें अपने हैंड्स को तो प्लीज जरूर क्लिक करके बताना। ये हमने सेंटर में एक लाइन खींच दी, सेंटर के और इस लाइन के बीच में आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, और फिर इसके और वात जॉइंट के बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ करें। इस तरह से हमारी 1 2 3 4 वात जॉइंट के साथ मिलके 5 लाइन हो गई। जब हमने LU11 यहाँ पे देखा, ये वाला कॉर्नर, देखिए कॉर्नर है, तो सेंटर वाली लाइन को छोड़ते हुए इस लाइन पे हमारा LU10 पॉइंट है, लाइन से थोड़ा सा ऊपर, पेन की नोक जितना ऊपर बस, ये हमारा LU10 पॉइंट है। ये है हमारा LU9 बिल्कुल जॉइंट पे, ये बहुत इजी है। इसको भूल के आप यहाँ पहुंचे, ये है हमारा LU5 फिफ्थ जॉइंट पे, एल्बो पे, ठीक है। LU5, LU11, ये क्लियर। अब आते हैं हम अपना मेटल पॉइंट का जो
सभी को उसमें ही दिक्कत आती है, बाकी सब क्लियर कर लेते हैं इजीली। तो ये वाला पॉइंट हमारा ये वात जॉइंट से लिटिल बिट, वहां पे तो मैंने बताया कि 2 फिंगर बॉडी पे, तो यहाँ पे हमने आईडीए से करना है। मैं आपको इसमें भी लाइन ड्रॉ करने के लिए बताती हूँ। लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली इक्वल लाइन डिस्टेंस होगा। जल्दी जल्दी में मेरा थोड़ा सा देखो इक्वल नहीं हो पाया। यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन जो है उससे ऊपर ये वाली जो लाइन है, ये हमारा LU8, ये है वात जॉइंट और ये है हमारा LU8। जो पहली लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये वात जॉइंट और पित्त जॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक लाइन ड्रॉ किया अपने। सेंटर और इस वात जॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर हमारा LU8। लंग्स मेरिडियन को एक बार मैं फिर से बताती हूँ और भी इजी तरीके से कोशिश करती हूँ हाथों को आपकी स्क्रीन के सामने लेके आ सकूं। देखिए ये है LU11। ये जो ये नाखून है ना पीछे वाला हमारा, इसके थोड़ा सा लिटिल बिट ऊपर आता है, बिल्कुल हल्का सा। ये हमारा LU11, ये हमारा LU10 वात जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, फिर वात जॉइंट पे LU9, फिर LU5 फिफ्थ जॉइंट पे। फिर इनके बीच में 4 लाइन हमने ड्रॉ की, सेंटर लाइन ड्रॉ की, एक ऊपर, एक उसके बिल्कुल एक नीचे, सेम इक्वल डिस्टेंस पे। और जो ऊपर वाला ये सेंटर वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की थी, उसके ऊपर हमारा LU8 पॉइंट आता है। क्लियर? चलिए अब हम पेरिकार्डियम पे पहुंचते हैं। पेरिकार्डियम स्टार्ट करने से पहले बताइए, क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस, आप आगे बढ़िए। ठीक है, अब हमारा पेरिकार्डियम एरिया P9, ठीक है। ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो P9 है। इसमें बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। ये जो सेंटर वाली लाइन थी वो P8, जो वात ज्वाइंट है सेंटर वो P7। उसके बाद क्या है, जो सेंट्रल लाइन हमने ड्रॉ की थी, हमारा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। LU जो 8 है वो ऊपर रह जाएगा और जो P5 है हमारा वो सेंटर में आता है बिल्कुल। P6 ऊपर आएगा, ऊपर वाली लाइन पे P8 के सामने और LU8 के सामने, और P5 सेंटर वाली लाइन पे आएगा। उसके बाद हमारा P3 पित्त जॉइंट पे आता है। देखिए एक बार फिर से, P9 P8 सेंटर में, P7 वात जॉइंट पे सेंटर में, P5 सेंटर में और P3 पित्त जॉइंट। अब हार्ट की मेरिडियन, ठीक है। हार्ट पे ये H9, ये देखिए बिल्कुल फिजिकल पे और क्लासिकल पे यहाँ था, और यहाँ पे हमारा एडजॉइनिंग मिडल फिंगर टुवर्ड्स मिडल फिंगर, ये है हमारा H9। H9 से बिल्कुल सेंटर वाली जो एरिया है वहां पे H8, उससे नीचे वात जॉइंट पे H7, बिल्कुल सेंटर में H4, सेंटर से जरा सा ऊपर है, ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन जो सेंटर के और वात जॉइंट के बिल्कुल बीच में लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, खुद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 4 7 6 5 4 इकट्ठे मैग्नेट लगेंगे, तो जो ये बीच वाली लाइन ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर ऊपर लगने चाहिए सारे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा बीच वाला पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर, बॉडी पे बिल्कुल सामने सामने है, लेकिन यहाँ हाथ पे थोड़ा सा नीचे आ जाता हुआ LU8 से। फिर H3, ये रहा H3 पित्त जॉइंट में। एक बार फिर से देखिए, H9 H8 मिडल में, H7 वात जॉइंट के पास, H4 जो है मिडल से थोड़ा सा ऊपर, मिडल लाइन जो क्रॉस की थी, और H3 पित्त जॉइंट पे।
कोशिश की है मैंने कि ब्योल पे आपको बहुत अच्छे से बता पाऊं। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, या क्वेरी सेशन में आप बता सकते हैं। कंटिन्यू शुक्ला जी, वो मेरे आपको पीपीटी पे बताएंगी अभी। So I hope it is clear to everyone. But then I will be showing it to you on the finger drawn on a paper, so that it's a revision again. So just give me some time. I will share with you. All right. So I hope it is clear to everyone. Yes. Okay. Just a minute. All right. So let us start with the lungs meridian. So as Nisha ji said, you have to first, draw this line, and from here you have to leave this much area on the top. Okay. Now draw a line parallel to your this finger here. Okay, at the corner, and let us just see now at the tip. Here we have LU11, which is a wind point. Okay, one more thing. From the Vata joint till this top line, you again make equal sections. Then from Vata joint to the Pitta joint, again make equal sections. So it will be easy for you to plot it. So eventually what you do is you, couple of days you start plotting it on your finger, and, practice it. So then you will learn it. And that is the reason we just picked up only 3 meridians at a time, so that it is very easy for us to understand. And now I have, compiled it together so that you can understand the difference, and it will be much easy to, remember also. Okay. So the first point is LU11, that is a wind point. I'm pretty excited because this is the drawing that I made, and then, to make everyone clear that, yeah, this is the location. Many a times when we are showing it on the hand, on the finger, it is like not so much visible, or there are some drawbacks. But then this is how then we came up with this idea. I hope you like it. All right. So this is LU11, and leave one line, come to the next line. This is LU10, which is the heat point. On the Vata joint, we have LU9. Then on the next line, as I told you, if you make lines, if you make sections, it will be very, very easy for you to plot it. Then this is LU8, which is a dryness point. Correct? Now let us come to pericardium. Pericardium, plotting pericardium points, 5 shoe points are very, very easy. See, it is in the center. You have to again make a line on the center, do the partition properly, leave the top area empty. From here you make a line and make sections, equal sections from Vata joint to the top line. Then from the Vata joint to the Pitta joint, again equal sections. Okay. So this is P9. P9 is wind point. Okay. Can you see the point over here clearly? Okay. P8 is heat point. It is right in the center. You will find some, protrusion here on the finger. So that is again easy to locate. All right. Now this is P7. This is on the Vata joint, and this is humidity point. Then leave one line. Okay. Then this is P5, which is a dryness point. Then come on the Pitta joint, right in the center. This is P3, coldness point. Okay. Now let us check the heart meridian. Now again, make sections, leave this top area, make a straight line over here, Vata joint and Pitta joint. Make equal sections so that it is easy to plot. All right. So H9 is again at the top. This is the wind point. H8. Now when you make 3 sections, so you will remember that the middle middle section is H8. You will never forget. Then this is H7 on the Vata joint, which is a humidity point.
Then again, when you have made a section from the Vat joint to the Pitta joint, then again it will be easy for you to locate H4. Okay, the next line is H4, which is a dryness point. And then of course, H3 is at the Pitta joint. I hope it is clear. We have made our effort to make it as clear as possible. All right, so this is all for today. Now, today we have covered only 3 meridians so that, you know, it's like easy. Now, I want everyone to plot it on the finger or on the paper and post it in the group so that we can correct it. It will be again very, you know, helpful. If you want our help, we are ready to help you. Apart from that, as I told you at the end, you know, we will be combining all the meridians and we will be explaining how to use those points. So we will be having 4 classes. Today we covered 3 meridians. Next class will be another 3 meridians. Next class will be, you know, another 3 meridians, and the next class will be another 3 meridians. So that it is very, very clear. We will not be talking about protocols or diseases. Maybe in some next sessions, you know, if God will, you know, we will definitely have that. Okay. So that is all for today. I hope you liked it. It was a small effort to, you know, make it as simple as possible. You know, I know there are hundreds and thousands of books and thousands of photos on the Google and internet, but it is very difficult to actually see it, you know, and then do it, because then there's a lot of confusion. Some say the H8 is here, some say H8 is up, down. So this is what we came up with, that look at this, that this is it, you know, so that it is clear. Any kind of confusion, if there is, you can post it in the group so that we can answer them. All right. So over to you, Nisha ji. थैंक यू शुक्ला जी. देखिए शुक्ला जी ने सभी आपको सब कुछ बताया है, सभी क्लियर हो गई है हर चीज, हर बात. अगर आपको अच्छा लगा तो एक मैं समझती हूँ कि एक आप लोगों को होमवर्क दिया जाए ताकि उसको आप करें और ग्रुप में डालें. ग्रुप में हमें पूरा मैसेज करें अपने हैंड्स को और बहुत क्लियरली हमें बताएं कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस तरह से मेरिडियंस को लोकेट किया है. अगर हमें ठीक लगा तो ओके, नहीं लगा तो हम करेक्शन करेंगे किसी भी तरह से. नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं, जिस तरह से भी डिजीज को डायग्नोस कर पाए हम इजी वे में, पेशेंट को सामने से आते हुए देख के ही आपको उस की रिलेटेड प्रॉब्लम पता चल सके. तो ये नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे. आई विल ट्राई माय बेस्ट. मैं और शुक्ला जी हम अच्छे से चाहेंगे. अगर कोई गुस्ताखी हो या नहीं समझ आया हो तो सॉरी, आप दोबारा से ट्राई करेंगे हम, ताकि आपको मैं ये चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से सभी मिलके चलें, सभी मिलके एक दूसरे का साथ हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ें. जो खेमका सर ने और जेपी सर ने और रविंद्रा सर ने कदम उठाया हुआ है, उनकी एनर्जी को आगे बढ़ाएं और उनको देखते हुए हम आगे बढ़ें और अच्छे तरीके से अपने संस्थान का भी नाम रोशन करें. थैंक यू सो मच. कंटिन्यू शुक्ला जी. All right. Thank you, Ravindra sir. Thank you, Priyanka ji, to help us. Sir, thank you. Thank you, madam. It is the other way around. We should thank you because you have done your job in an excellent manner. Thank you, sir. We tried Very our simple, best. easy to understand. Everybody, as you know, I'm sure have enjoyed the session. More than that, you know, clarity has been given, and will certainly continue, you know, in the days to come for all, you know, all the meridians elaborately. You can take your own time. I'll provide you the platform, madam. Thank you. It is of immense help to all the students. Great. So in coordination with you people, I'll announce the next class very, very soon. Okay. So thank you very much once again. Be blessed by the divine. Thank you very much once again. Thank Bye. you, sir. Thank you, sir. Catch up again. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.